प्रैक्टिकल में क्या किया अभी? मैम मैंने सर्कल तक का अच्छा, ठीक है। और प्लस टी तक का कर दिया है। अच्छा, ठीक है। कृष्णा, आपका कितना हुआ बेटा? यस मैम, मैंने एलिप्स तक कर लिया है, उसके बाद वो क्लिपिंग वाला करना है। कृष्णा, आपका कितना हुआ बच्चे? यस मैम, मैंने एलिप्स तक कर लिया है, क्लिपिंग वाला करना है। चलो फिर आई मैं टेक जस्ट 1 hour मैं थियरी। ऑडिबल हूँ? हाँ बोलो। हाँ, ऑडिबल हो। I'll just take 1 hour theory and then I'll leave you for the practical. ठीक है? In this I'm going to cover 2 presentations. पहले हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कर लेते हैं, then I'll come back to the theory. देखो, आपके पास you are able to see the screen? यस मैम। Okay. आपके पास चैप्टर 3 हम कर रहे थे फोले का, ठीक है, जिसमें हमने दो चीजें किया। एक हमने किया स्कैन कन्वर्जन, दूसरा किया हमने क्लिपिंग। अब उसमें तीसरी चीज जो रह जाती है दैट इज फिलिंग द प्रिमिटिव। जैसे आपने कोई सर्कल बना लिया तो सर्कल के अंदर फिल कैसे करते हैं, दैट वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ। आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट। दैट नेक्स्ट यूनिट इज regarding your transformation and projections. This is purely mathematical. You will not get a single question of theory from this topic. This is to be covered from book called Mathematical Elements of Computer Graphics. Have that book available on net. I have it home. I have it in college. Whenever I'll go to college, I'll click the photographs and send you across the PDF. But by that time, till that time, you will have to stick to these presentations for both the units, for both the chapters in the unit. This is chapter 2 of Rogers and chapter 3 of Rogers. The name of chapter 2 is transformation and the name of chapter 3 is projections. अभी ये जो प्रेजेंटेशन मैं अभी आपके साथ कवर करने वाली हूँ, दिस इज अ जनरलाइज्ड प्रेजेंटेशन रादर देन स्टिकिंग ओनली टू द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फंडामेंटल टू कंप्यूटर ग्राफिक्स and the coordinate systems are used to describe the locations of points in मेरा हाँ जी, am I audible? यस मैम। हेलो, मैम आपकी आवाज कट गई थी। अब आ रही है? यस मैम। कहाँ तक सुना था? मैम ये पेज तो नहीं सुन पाई। नहीं, ये पेज तो मैंने अभी बोलना शुरू ही नहीं किया। ये सुन लिया था। ठीक है। Now, if you have a coordinate system, say xy, a two-dimensional coordinate system, then in that case, different coordinate systems will represent the same point in different ways. For example, you have this coordinate system with u on x-axis parallel to x-axis and v parallel to y-axis. Here, point 2 comma 3 is represented like this. In another coordinate system with u and v as parallel to y and x axis, point this will be represented as 1 comma 2. Now there is a provision that you can move from one coordinate system to another coordinate system. How do you move that? You just see these points. In order to map the point 2 comma 3 to 1 comma subtract करना है. That means here what you can see is say is that if u is equals to x minus y and v is equals to y minus y, so this point will be, which is currently 2 comma 3, it will be mapped to 1 comma 2. And the other way is also possible, that you can map the point 1 comma 2 to 2 comma 3. How is that possible? If you will add 1 to 1, it will give you 2, and if you add 1 to
2, it will give you 3. So the equation is x is equals to u plus 1 and y is equals to v plus 1. So during the transformations we convert the points between the coordinate systems. यहाँ तक हिमांशु क्लियर है? हिमांशु यहाँ तक क्लियर है? Am I audible? Yes, ma'am. हाँ जी. Now moving on to the next slide, you have affine transformations. देखो टॉपिक पढ़ो क्या है. टू डायमेंशनल मतलब एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है. Affine transformations. Affine that can be written in this form. Any affine transformation can be composed as a sequence of simple transformations. कौन सी 3 simple transformation है? Translation, scaling and rotation. देखो आपके पास x है और y है. आप नया x और नया y निकाल रहे हो, which can be labeled as x dash and y dash. Equation क्या हो जाएगी? That x dash is equals to axx into x plus ba xy into y plus bx. Similarly for y dash. ठीक है, जहाँ पे axx, axy, ayx and ayy are the coefficients of x and y respectively. Then and bx and by are the constants. इस चीज को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. How do you write it? X dash y dash equals to the coefficient matrix multiplied with x and y with the single column matrix x y plus bx and by. इसको अगर आप खोलेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? द इंटायर रो इज मल्टीप्लाइड विद द इंटायर कॉलम. So what you will get is axx into x plus axy into y plus bx, which is the original equation. So anything which can be written in the form of the matrix is called affine transformation. And affine transformation के simple transformations हैं translation, scaling and rotation. Now we are going to take one by one each one of them. अश्विन यहाँ तक क्लियर है? अश्विन, नाउ ट्रांसलेशन का मतलब होता है आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख रहे हैं. दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब वो कैसे किया जाता है? मान लीजिए इक्वेशन हमने इस फॉर्म में छोड़ी थी, x dash y dash equals to the constants multiplied by original numbers, original axis x and y plus the constant values bx and by. इसको इसी फॉर्म में लिखा है. and what we intend to find out is these question marks. When you see that you have an object which is rectangular in shape and whose center lie at the origin, तो इसी तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. आपने एक रेक्टेंगल को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से रखना है कि उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर आए. तो इसी तरह से प्लेस करेंगे. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू चेंज द पोजीशन of this object such that its center is lying here. So that means अब जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखेंगे. तो इस तरह से रखने के लिए जो ये आपका ऑरिज सेंटर था, इस सेंटर को कितना यूनिट्स आपने कहाँ कहाँ चलाया. लेट दिस बी bx and let this be by. That is, it moved bx units in x axis and by unit in y axis. So in that case आपको इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह आपको bx और by लिखना है. एंड x एंड y में कोई चेंज नहीं है.
So that means your equation should be x plus bx and y plus by. वो कैसे आएगा? अगर यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे. So that means 1 into x plus 0 into y will give you x plus bx. Similarly, here you will get 0 into x plus 1 into y plus bx. So that means आपकी translation की equation क्या हो जाएगी? X dash equals to x plus bx and y dash equals to y plus by. चिराग यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Now, let us talk about scaling. स्केलिंग का मतलब होता है रीसाइजिंग. रीसाइजिंग में आपका कंप्रेशन भी आ सकता है और आपका साइज बड़ा भी हो सकता है और साइज छोटा भी हो सकता है. ठीक है, तो एनलार्जमेंट एंड कंप्रेशन दोनों आ सकता है. तो अगेन द क्वेश्चन लाइज द सेम वे कि आपके पास ये x डैश y डैश है, ये x और y है. यू नीड टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन मार्क्स. Let us again consider an object which is rectangular in shape and whose center lies at origin. Then we need to somehow change the size of the object so that you get this new object. So here what you see is that its position has not changed. Only the dimension of I mean to say its length and its width has been changed. Now how it has been changed, we have multiplied some number with x and some number with y. Maybe here if you can see that you have doubled it in y direction. So here you multiply x with 2 and you have reduced the size in the x direction. So that means you multiply x with half. In general, you multiply x with a constant sx, that is scaling factor in x direction, and you multiply y with sy, that is the scaling factor in y direction. अब आपको चाहिए क्या इक्वेशन? x dash equals to sx into x. So that means x को sx से मल्टीप्लाई कराने के लिए यहाँ आपको sx चाहिए और यहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए so that your y component is nullified. तो उसके लिए आपको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा. So your matrix will come out like this: sx and 0 in the first row, so that sx into x plus 0 into y give you x dash equals to sx into x. Similar is this explanation. So here what you do is diagonal elements are your scaling factors in x and y direction respectively. Lalit, यहाँ तक clear है बेटा? Yes, ma'am. So here this sx and sy, कोई आने की कोशिश कर रहा है क्या क्लास में? हाँ जी. So where were we? So यही थे ना? So while resizing an object, you need to write the scaling factors as the diagonal elements of the matrix. Okay? Now, moving further to rotation. Again, rotation can be counterclockwise or it can be anti-clockwise, but the rotation should always be about the about an angle. It should be always with respect to the origin. So here what you find is that this is again that same object. Suppose it is rotated by an angle theta. Now you need to find out these question marks. Here what you find is that we are not going into the derivation of this. This is
cos theta minus sin theta and cos theta multiplied with xy. So what you get here is x dash is equals to cos theta into x cos theta minus y sin theta, and y dash is equals to x sin theta plus y cos theta. Now you have another. Acha, just remember one thing. All these transformations which you are studying is always with respect to origin. That means there must be something else which you need to do in the matrices if you have to translate an object which does not lie on the origin. तो उस जगह पे आपको कुछ और चेंजेस भी करने पड़ेंगे. Now, moving further, another thing which is there is called as shearing. SHEARING. शेयरिंग क्या होता है कि आप एक एक्सिस में उसको ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में टिल्ट करते हो, लेकिन जो टिल्टिंग हो रही है, जैसे आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, इसको आपने इंक्लाइन किया, लेकिन ये जो इंक्लिनेशन हुआ है वो आपने x में जो चेंज किया है, that change is dependent upon some factor of y. I repeat again that you are trying to incline the object. When you incline the object in say x direction, जो यहाँ पे example दिखाया हुआ है, then in that case जो x direction में change हो रहा है, that change is dependent upon some factor of y. Here, what you find here is that means x will remain the same. इस पुराने x में आपने some factor of y को add करना है, तो you will have here shx into y. That means 1 into x plus the shearing factor along x-axis multiplied with y will give you the new x dash. I repeat again that shearing can be obtained along x-axis or along y-axis or along both the axes. When you talk about shearing may, when you talk about say shearing along x-axis, there is some change which is made to x. That means you will get a new x dash. That new x dash will have a property that whatever you add to that purana wala x, it will be something, some factor of y. So that means you will have x dash equals to x plus shx into y. I hope you understand the labeling. SHX is the shearing factor along x axis. Similarly, you can have it for y axis. Y axis में होता तो this quantity would have been 0 and the 0 quantity would have been SHY. रमेश यहाँ तक clear है बेटा? Yes, ma'am. And if you have shearing along both the axes, then your matrix will be यहाँ पे SHY और यहाँ पे SHX. Now you have another thing which is called reflection. रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे आप मिरर में इमेज देखते हैं तो आप एक्सेस को मिरर मानते हैं और फिर आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. रिफ्लेक्ट अच्छा एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू. देखो जब स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग फैक्टर्स डायगोनल एलिमेंट्स में लिखते हैं. जब शेयरिंग करते हैं तो आपका जो शेयरिंग फैक्टर्स है वो नॉन डायगोनल. सो दैट मीन्स इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है व्हेन वी चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स modification to non-diagonal elements, then we get shear. तो अब आपको एक कराई थी रोटेशन.
देखो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा लिखा है। तो जब आप इनमें थीटा की वैल्यू डालते हो, सपोज 90 डिग्री डाला, तो ये सब आंसर जो है ये 1 - 1 या जो भी रिजल्ट्स में आपके पास आंसर आएंगे। अब बात करते हो रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में आपके पास जब आप रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सेस करते हो, तो आप वाई कंपोनेंट का डायगोनल एलिमेंट को आप -1 करते हो। That means your equation will here be that x is not being changed, x dash is equals to x, but y dash जो है that will be -y. सिमिलरली अगर आप इसको रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सेस करेंगे, तो आपका ये वाला कंपोनेंट -1 हो जाएगा एंड दिस कंपोनेंट विल रिमेन एज +1. And if you reflect it about x and y axis both, then both the diagonal elements will be -1. Now, यहाँ तक क्लियर है? सही? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Now, let us talk about further if the point is not with respect to the origin. तब in that case हमें तो जितने भी ये मैट्रिसेस के फॉर्म्स पता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अब आपके पास नेक्स्ट आता है, यू आर ट्राइंग टू रोटेट अबाउट एन आर्बिटरी पॉइंट. दैट मीन्स कि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे ना लाई करके कहीं और लाई करता है. What happens when you apply a rotation transformation to an object that is not at origin? Then in that case it translates as well. क्यों ट्रांसलेट कर रहा है? क्योंकि आपको जो मैट्रिक्स आता है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आता है. तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती खींचकर ओरिजिन पे लेके आते हैं. तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उसको आप ओरिजिन पर लेके आए. This is you're changing the position of an object, that is called as translation. और ट्रांसलेशन आपको आता है. फिर आप इस पे रोटेशन करते हैं जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन में कहा गया है. रोटेशन करने के बाद जितनी आपने उसको ट्रांसलेट करके नीचे लाए थे, उतना ही आप उसको ट्रांसलेट करके ऊपर ले जाएंगे. सो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 3 मैट्रिसेस आएंगे. मान लीजिए अगर ये x, y पोजीशन पर है, तो आपने पहले इसको ट्रांसलेट करके यहाँ कैसे लाना है, इसको -x और -y पोजीशन चला दो. तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आया. उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज विद एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, रोटेशन का मैट्रिक्स लगाइए. एंड देन आपको मालूम है कि आपने उसको -x और माइनस यूनिट्स वहां पे लगाया था. अब आप उसको इसी के आगे +x और +y यूनिट में ट्रांसलेट करा दें. So that means you will have 3 matrices: translation, followed by rotation, followed by again translation. Translation with the translation factors as -x and -y, rotation with an angle theta, and then translation with the factor of +x and +y. So, say you wish to rotate the point A, B. You know how to rotate only about the origin. So you need to first translate, then rotate, and then translate back again. Right? So when you do this, in this case, you're not able to do it properly. Why? क्योंकि आपके पास जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, इफ यू रिमेम्बर, उसमें आपके पास bx और by वाली टर्म्स भी थी, रोटेशन में नहीं थी. रोटेशन वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन.
but translation was about multiplication and as well as addition of matrix. So this leads to a mess. So what you need to do is that you need to make some change in the matrices so that all the transformations get into the form of multiplication, so that your actual step leads to multiplication of three matrices in a row. बात यहाँ तक समझ में आ रही है कृष्णा? Yes, ma'am. So for that you need to move to homogeneous coordinates. Homogeneous coordinates हम पहले भी एक बार ये टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. तब वो इसलिए करा था हमने कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो हमारी विसिनिटी से बाहर है, तो उसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाने के लिए हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक और डायमेंशन को ऐड कर देते हैं, दैट इज द एचथ डायमेंशन. एच बोलो या उसको डब्ल्यू बोलो, ठीक है. अब यहाँ पे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का दूसरा यूज आ रहा है, दैट इज वी need to make all the transformation matrices as multiplicative matrices. So you use three numbers to represent a point instead of two numbers. That means x y जो है now is represented by wx comma wy comma w for any constant w which is not equals to 0. When w is equals to 0, you're talking about infinity. Typically, x comma y will become x comma y comma 1 with w equals to 1. तो जब आप इसको इस तरह से करते हैं, then in that case आपका जो ट्रांसलेशन है that can be done with matrix multiplication. अब वो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली अब जो पॉइंट है आपका वो x y नहीं है, वो है x y 1. तो दैट मीन्स अब आपका 2x2 मैट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको 3x3 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है. और जो नया पॉइंट है दैट विल बी x डैश y डैश 1 एंड दिस इज हाउ यू राइट डाउन योर मैट्रिक्स. जो आपका वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स था, 2x2 मैट्रिक्स था, वो ये छोटा वाला पॉइंट है, मैट्रिक्स है इसके अंदर ए एक्स एक्स ए एक्स वाई ए एक्स वाई ए वाई वाई. एंड जो आपका एडिशन वाला मैट्रिक्स था वो ये रहा बी एक्स एंड बी वाई. एंड सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द plane where h is equal where w is equals to 1, that means x and y are 0, so you write it like 0 comma 0 comma 1. w equals to 1 की इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 0 comma 0 comma 1. so this is how now your translation matrix में bx और by जो भी वैल्यूज देनी थी वो आप यहाँ पे दे सकते हैं. यहाँ तक अनिल क्लियर है? Anil, is it clear to you? Yes, ma'am. अच्छा, एक बात को समझिए, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड प्रोजेक्शंस आपके फोले में भी है और आपके रॉजर्स में भी है, ठीक है. लेकिन आपको रॉजर की रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करना है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज गिवन इन फोले, दैट इज परफेक्टली फाइन. पर हम रॉजर्स पे इसलिए स्टिक करेंगे क्योंकि आपके गाइडलाइंस में सिलेबस में रॉजर की बुक लिखी है. मैथमेटिकली क्या फर्क है कि फोले में रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसलेशन फैक्टर्स लास्ट कॉलम में लिखे हैं और जो इक्वेशन है वो आपकी लास्ट रो में लिखी हुई है. बट जो आपकी रॉजर्स है वहां पे ट्रांसलेशन फैक्टर्स आर गिवन इन द लास्ट रो and your equation is given in the last row. And I will suggest you that you stick to the Rogers representation. That means ये जो matrix है इसको आप use करोगे with bx and by as here and 0 and 0 here. Clear? Is that okay?
Hanji Yes, ma'am. Anshika, is that clear? Yes, ma'am. Now, so basic transformation matrices are like this. ट्रांसलेशन के लिए देखो हमें अंदर वाले मैट्रिक्स को कुछ नहीं करना, ना हमें डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करना होता है, ना हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करना होता है। तो दैट मीन्स हम ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स है इसको हम यूनिटी रखें, वन सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इक्वेशन रिमेन सेम 0 0 1, एंड यहाँ आ जाएगा bx and by. So you are translating it in bx in x direction, by a factor of bx in x direction and by a factor of by in y direction. Then you have next, that is scaling. Scaling may you're not going to make any change to the plane key equation. So you have 0 comma 0 comma 1. You're not going to make any translation, so this will be 0 comma 0. Scaling के लिए you need to change the diagonal elements. So non-diagonal elements will be 0 comma 0, having no weightage here, and you will have your scaling factors sx and sy. Then you have rotation का matrix. Rotation में again no translation factors, so 0 comma 0, and equation remains as w equals to 1, so 0 comma 0 comma 1. And here you will have your rotation matrix cos theta minus sin theta cos theta. So what you find is इतनी देर से जो हम पढ़ रहे थे उसको समझने के बाद आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये तीन मैट्रिसेस को याद रखना है. Again I say that in your ऑल द न्यूमेरिकल्स, ये जो बी एक्स बी वाई है, ये रो और ये कॉलम को हम इंटरचेंज करके ही सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. अब होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन की एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, यूनिफाइड व्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि अब सब कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया है, यू डोंट नीड एन एडर फॉर दैट, सो योर इट इज इजी इन हार्डवेयर एंड एज वेल एज इन सॉफ्टवेयर. Second advantage is that to compose transformations, simply you need to multiply the matrices. And just remember that order of matrices do matter. AB is not the same as BA. That means जब हम बात करते थे कि पहले ट्रांसलेट फिर रोटेट एंड देन फिर ट्रांसलेट, तो वो उसी ऑर्डर में होगा. अगर आपने ऑर्डरिंग चेंज कर दी है देन यू विल नॉट गेट द सेट ट्रांसफॉर्मेशन. With this, we have completed the first presentation of transformations. So now can we move on to something theory, raster random में, or you want me, ऐसा करो, आप लोगों को मैं ये प्रेजेंटेशन अभी शेयर कर दूंगी. आप लोग इस प्रेजेंटेशन को कल की क्लास, कल हम मिलते हैं ना, ट्यूसडे है ना कल? टुमारो डू वी हैव अ क्लास? हेलो, मैं मैम ऑडिबल? वेडनेसडे है क्लास हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे मॉर्निंग में है ना शायद? नहीं नहीं, वेडनेसडे हमारी 10:45 बजे होती 10:45. है. हाँ, तो सजेस्ट यू दैट वेडनेसडे की क्लास अटेंड करने से पहले ये जो अभी प्रेजेंटेशन आपको कराई थी ना, इसको 5 मिनट देख के आना. तभी हम वेडनेसडे को स्पीड पिकअप कर पाएंगे. इतनी धीरे तो नहीं करा पाएंगे, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं होगा. ठीक है. नाउ आई एम मूविंग टू अ लिटिल ड्राई पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज थियरी थोड़ा सा. तो ये हमने लास्ट क्लास में शुरू भी किया. Raster and vector are two types of images. Raster में everything is saved in the form of your grid. ठीक है. अगर आपके पास ये 6x3 ग्रिड है तो आपकी जो इमेज है वो 6x3 हो सकती है. ठीक है. अब पहले वेक्टर इमेजेस की बात करते हैं. The vector images are in the form of your collection of uh, instructions in a program, like draw a line from this point to this point, then draw a line from this point to this point, draw a rectangle, then draw another rectangle, and so on, right? Then further here
वेक्टर सिस्टम को हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी बोलते हैं. डिस्प्ले डिवाइसेस आर कॉल्ड वेक्टर और लाइन और स्ट्रोक और लाइन ड्राइंग और कैलीग्राफिक डिस्प्लेस. इसमें आपके 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज योर डिस्प्ले प्रोसेसर, अनदर इज योर बफर मेमोरी एंड द थर्ड इज योर सीआरटी. रीफ जो आपका बफर होता है, दैट इज योर मेमोरी एरिया, उसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है जिससे आपकी इमेज बनेगी, उसमें लास्ट में अनकंडीशनल जंप होता है. वो अनकंडीशनल जंप इसलिए होता है क्योंकि फॉस्फर जो है वो कुछ टाइम के बाद डीके हो जाता है. तो आपको फ्लिकरिंग ना दिखाई दे, उसके लिए आप यहाँ पे अनकंडीशनल जंप दिखा देते हैं कि उसके डीके होने से पहले आप उस इमेज को दोबारा से स्क्रीन पे प्लॉट कर देते हैं. That is why this memory area is also called as the refresh buffer. इसके वेक्टर सिस्टम के पास अपना ही एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले कंट्रोलर. जो प्रोसेसर सीपीयू की तरह जो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर इनके लिए जो हमें एनालॉग वोल्टेज चाहिए सीआरटी के इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए, उसका उसको पढ़ता है और वेक्टर जनरेटर उन डिजिटल कोऑर्डिनेट्स को एनालॉग वोल्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं. देन दैट मींस am I still audible? Arvind, am I audible? Yes, ma'am. Arvind, am I audible? So, in a vector system, a beam is deflected from one endpoint to another endpoint, and it is decided by the order of commands which are written in the buffer. कहने का मतलब है, ये जो हमने हट सी बना रखी है, अगर हट के रूफ की बात करें तो यहाँ 3 लाइंस ड्रॉ करनी है. आई कैन राइट फर्स्ट ड्रॉ दिस लाइन, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन. बट मेरे को कोई मना थोड़ी ना कर सकता है. इफ आई से दैट फर्स्ट ड्रॉ दिस लाइन, देन ड्रॉ दिस लाइन, देन ड्रॉ दिस लाइन, तो जो आपका बीम का डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगा किस ऑर्डर में आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी है. वो इसका मतलब है कि अगर अभी आप इस पॉइंट पे हैं तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद आप इस पॉइंट पे रैंडमली आ सकते हैं. सो दैट मीन्स this is the beam is deflected from one endpoint to another endpoint, and this is decided by the order of commands which are written in the buffer. So this technique is also called as random scan. अब समझ में आया कि वेक्टर सिस्टम को हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो एक पॉइंट से रैंडमली दूसरे पॉइंट पे जा सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्स वाई लोकेशन पे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपको x+1, y पे ही जाना है. आप कहीं भी जा सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके इंस्ट्रक्शन क्या लिखी गई है. Acha, since the light of the phosphor decays in tens of microseconds, so the display processor must cycle through the display list. Display list हो गया वो आपका program. To refresh the phosphor at least 20 times per second. Times per second की जो unit है that is hertz. तो I can even write it as 20 hertz. ये गलती से 30 लिखा हुआ है. To avoid flicker. Hence, the buffer holding the display list is called as refresh buffer. ठीक है? Note that the jump instruction loops to the top of the display list to provide the cyclic refresh. तो वो रिफ्रेशिंग होती रहे इसके लिए आप अनकंडीशनल जंप को लास्ट में लिख देते हैं, क्योंकि वो बफर बार बार उसको पढ़ के आपकी स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा है. सो दैट मेमोरी एरिया which stores your display list is also called as the refresh buffer. Buffer memory and processors fast enough to refresh rate of 30 hertz were expensive. इसके लिए डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स आर बीइंग यूज्ड. ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी सीआरटीज. अब वेक्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम
When operated as random scan display unit, a CRT has an electron beam directed only to the parts of screen where the picture is drawn. So random scan monitor draw a picture one line at a time, and for that reason it is referred as vector display or stroke writing or calligraphic display. दैट मीन्स वो एक टाइम पे एक लाइन को ही ड्रॉ कर रहा है, तो इसलिए उसको लाइन सिस्टम या वेक्टर सिस्टम या स्ट्रोक सिस्टम भी कहते हैं. So this is how your vector system will draw the line. Suppose this is your CRT, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन बीम आई, then it drew this line, then further it drew this line, and then finally it will complete the triangle. So that means जब आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, उसके बाद आप और आगे नहीं गए, आपने यहाँ से नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करना शुरू किया. Then रिफ्रेश रेट होता है कि कितनी बार आप उस प्रोग्राम को एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर बार बार रीड करवा के डिस्प्ले करा रहे हो. Refresh rate at a random scan on a random scan system depends upon number of lines to be displayed. क्यों? क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, और अगर आपने 10 के बजाय 20 कमांड्स लिखी हैं तो आपके पास रिफ्रेश रेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको 20 कमांड करने के बाद अनकंडीशनल जंप पर आना है. And picture definition is now stored as set of line drawing commands in the memory area. Sometimes refresh file is also called as the display list or the display program or simply the refresh buffer. And best systems are those systems where you have your refresh rate close to 30 to 60 times per second. मतलब 30 से 60 बार आपका एक सेकंड में उस प्रोग्राम को बार बार डिस्प्ले कराया जा रहा है. Now moving on to the raster system. Raster system ऐसा नहीं होता, उसमें randomly नहीं होता, उसमें step by step होता है. Am I audible, Himanshu? Am I audible? Trishna, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी. तो रास्टर सिस्टम में क्या होता है, वहां पे आपको कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट अगर आपने व्यू किया है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे ही जाना पड़ेगा. इट इज समथिंग लाइक, लुक एट दिस ब्लू स्क्रीन. ये आपकी स्क्रीन है. इस स्क्रीन को आप रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दो, और हर सेल के इंटरसेक्शन पे या तो आप बैकग्राउंड कलर एज 0 रहने दो, या आप जो भी इमेज बना रहे हैं उसका कलर डाल दीजिए. मान लीजिए अगर ये बिट मैप है, बिट मैप मतलब आपका ये ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम है, तो या तो आपकी वैल्यू 0 होगी उस सेल के अंदर, या आपकी वैल्यू 1 होगी. मान लो अगर आपने एक ट्रायंगल बनाना है इस तरह से, और वो ट्रायंगल जो है वो आपका फिल्ड है, तो आपका रास्टर सिस्टम में रास्टर ग्रिड कैसे लिखोगे? उस रास्टर ग्रिड में यहाँ पे सारी सेल वैल्यू 0, यहाँ पे पहली 3 सेल वैल्यू 0, फिर एक उसका जो एज आ रहा होगा ना आपका ट्रायंगल का, वहां 1, और उसके बाद सारी वैल्यू 0, फिर आपने 3 को 1 कर दिया, फिर आपने और 1 कर दिया. सिमिलरली लाइक दिस, बाकी सारी वैल्यूज आपकी 0 है. तो यहाँ डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करेगा? कोई उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़नी है, उसको रास्टर ग्रिड को पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप. अगर वो x कॉमा y लोकेशन है तो ये लोकेशन x प्लस 1 कॉमा y, x प्लस 2 कॉमा y, x प्लस 3 कॉमा y, सो ऑन टिल x प्लस n कॉमा y. उसके बाद वो यहाँ आएगा. यहाँ जब आएगा तो ये देखो ये y था, ये लोकेशन क्या थी आपकी 0,0, तो y आप नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ आएगा x, again x, comma y minus 1. Then this will be x plus 1, comma y minus 1. Then x plus 2, comma y minus 1. अब जब अगली लाइन पे आएंगे तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, that will be again x
comma y minus 2, so on like this. ठीक है? So raster display stores the display primitives such as lines, characters, shaded areas. जैसे ये shaded area था हमारा, in a refresh buffer in terms of their component pixels. तो हर पिक्सल के अंदर या 1 स्टोर्ड है अगर वहां पे कोई इमेज दिखानी है, और या 0 स्टोर्ड है अगर आपको वहां पे बैकग्राउंड कलर दिखाना है. That means here you will have one more important component which is called as the video controller. Display controller आपका होस्ट कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है. आप डिस्प्ले कंट्रोलर को इनपुट कीबोर्ड और माउस से दे सकते हैं. वीडियो कंट्रोलर इन वोल्टेजेस को पढ़ता है, और वीडियो कंट्रोलर के बाद मॉनिटर पे आपको इस तरह का आउटपुट, ये एक ट्रायंगल दिखाई देगा. नाउ the raster is stored as a matrix of pixels representing the entire screen area. ये पूरी स्क्रीन एरिया को हमने एज अ मैट्रिक्स की तरह सेव किया है, जिसके अंदर पिक्सेल्स की वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं. The entire image is scanned out sequentially, one after the other, by the video controller, one raster line at a time from top to bottom and back to top. कहने का मतलब है ये एक स्कैन लाइन है. ये जो एक रो है इसको हम रो को बोलते हैं स्कैन लाइन. ये एक स्कैन लाइन जो है इसको हमने पहले sequentially स्कैन किया. Then we move back to the left of the screen again, scanning the next scan line, then move back to the left of the screen, scanning the next scan line. Finally we scan the last scan line, and then we move back to the top again, so that we can again scan the first line, so that वहां पे आपके पास रिफ्रेशिंग होती रहे ऑटोमेटिकली, कोई फ्लिकरिंग ना हो. तो जब हम लेफ्ट से सॉरी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं स्क्रीन पे तो हम स्कैनिंग कर रहे हैं, बट जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो हम वापस आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस. इस टाइम पे हम कोई स्कैनिंग नहीं कर रहे हैं साथ में. इसी तरह से जब हम स्क्रीन के एंड तक पहुंचते हैं, हम वापस टॉप पे जाने के लिए वर्टिकल रिट्रेस करते हैं, जब हम स्कैनिंग नहीं करते हैं. Why I am emphasizing on these terms is that because जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो स्कैनिंग के टाइम पे जो टाइम लगता है उतना टाइम आपका वर्टिकल रिट्रेस और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस पे नहीं लगेगा. ठीक है? तो जस्ट रिमेम्बर दैट कि एक हर स्कैन लाइन को सीक्वेंशियली पढ़ा जाता है. हर स्कैन लाइन को पढ़ने के बाद एक बार हॉरिजॉन्टल रिट्रेस किया जाता है. पूरी स्क्रीन एक बार पढ़ने के बाद एक बार वर्टिकल रिट्रेस किया जाता है, और ये काम बार बार होता है. इस काम को हम 30 टाइम्स पर सेकंड करेंगे तो 30 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी. 60 टाइम्स पर सेकंड करेंगे तो 60 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी रमेश, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Then moving further, तो आपका जो वो डायग्राम देखा था उसके एनालोगस आपका अब रास्टर सिस्टम में ये इस तरह से बन रहा है. हर स्कैन लाइन को हम स्कैन करते जाएंगे, जहां जहां वन आता जाएगा धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से बनता जाएगा. आई होप द डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर सिस्टम एंड अ रास्टर सिस्टम इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. Yes, ma'am. मूविंग फर्दर, इसमें अब ये सब आप रीड कर लीजिएगा. दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है? बेसिकली इस पूरे टॉपिक में आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है? What is the difference between a raster system and a vector system? या why is it called as a refresh buffer? या why refreshing is required? तो आपको ये जो टेबल है, दिस टेबल you need to understand the difference between the two.
पहला डिफरेंस है रास्टर सिस्टम में द मीम इज मूव्ड ऑल ओवर द स्क्रीन वन स्कैन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन वेक्टर सिस्टम में इट इज मूव्ड बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्राफिक्स प्रिमिटिव। रास्टर सिस्टम में refresh process is independent of the complexity of the image, लेकिन वेक्टर सिस्टम में it will flicker when the number of primitives in the buffer are too large. Obviously देखो रास्टर सिस्टम में तो उसको उस स्क्रीन को शुरू से लेके बॉटम तक स्कैन करना ही है, लेकिन वेक्टर सिस्टम में उसको सेट ऑफ कमांड्स को पढ़कर अनकंडीशनल जंप में जाना है। तो अगर 20 कमांड की बजाय मैं 200 कमांड वहां लिख दूंगी, मतलब वहां हट के साथ एक ट्री भी बना दूंगी, एक रिवर भी बना दूंगी एंड एक सन भी बना दूंगी, माउंटेन भी बना दूंगी, तो नंबर ऑफ कमांड्स वहां पे 20 की बजाय 200 हो जाएंगी। तो वहां पर आपकी अनकंडीशनल जंप जो है वो बाद में आएगी तो वहां पे आपका फ्लिकरिंग होगा। तो कहने का मतलब है कि a vector display flickers when the number of primitives in the buffer area are too large. Then graphic primitives are specified in the terms of their endpoints and must be scan converted into their corresponding pixels in the frame buffer. Whereas here scan conversion is not required. Fourth difference is because each primitive must be scan converted, so real time dynamics is more computational and you require a separate scan conversion hardware. और यहाँ तो आपको scan conversion नहीं चाहिए तो scan conversion hardware भी नहीं चाहिए। Raster system can display mathematically smooth lines, polygons, curved primitives, etc. by approximating them, whereas your vector system draws a continuous and smooth lines. तो अगर आपको continuity चाहिए और आपको better figures चाहिए तो आपको vector system पे जाना चाहिए। अच्छा, raster system में cost is low, whereas vector system में cost is more. And raster system has the ability to display filled areas with solid colors, लेकिन vector system में you can only draw the lines and characters, you cannot have filled areas. So again, the difference is shown in this diagram, which is self-explanatory. And दोबारा से वही टेबल के में डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि पिक्चर का कंट्रास्ट बेटर होता है रास्टर में, इसमें कंट्रास्ट बेटर नहीं होता, इसमें रेजोल्यूशन लेस होती है, इसमें रेजोल्यूशन हाई होती है। इट इज केपेबल ऑफ ड्राइंग बेटर कर्व्स, it is used for smooth drawings, it is used for realistic images, it cannot be used for shaded areas, screens, sorry, areas. And the cost is less here, cost is more here. It is mainly used for point plotting, whereas it is used for line drawing, it is used in your TV sets, it is used in your pen plotters. So इस पूरी प्रेजेंटेशन को पढ़ने के दो आपके पास रीजंस है। पहला रीजन ये है कि आपको प्रैक्टिकल में काफी ज्यादा खींचा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर, और उसी में कि आपको क्यों लगता है कि उसकी कॉस्ट लो है, क्यों हाई है इसकी कॉस्ट, आप किस में वर्क कर रहे हैं, स्टफ्स लाइक दैट। एंड सेकंड, आपका थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि cite any two differences between raster system and random system. So I hope यहाँ तक सबको क्लियर है। भूमि क्लियर है बेटा? Yes, हाँ ma'am. जी भूमि, ठीक है। सो नाउ आई लीव यू फॉर द प्रैक्टिकल। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को 10:45 पे, ठीक है। ये मैं दोनों प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लूंगी और वेडनेसडे को हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा थियोरी बीच में क्लब कर लेंगे, अदरवाइज एक पूरा घंटा थियोरी पढ़ाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे। रशी आपकी प्रेजेंट लगा देंगे, इज दैट ओके? ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके जी, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम, बाय। हेलो। चलो उठकर नहा धो तैयारी करो, संगवारी होगी थोड़ा सा। अभी संगवा रहा हूँ। दूसरी क्लास शुरू होने से पहले पहले निपटा ले काम। हैं?
शायद